روس کے ایک چھوٹے سے قصبے میں، جہاں سردی ہوا کے ساتھ انسان کے لہجے میں بھی اتر آتی ہے، ایک خاندان تھا جس کا نام سن کر لوگ ہنس بھی دیتے اور کان بھی کھڑے کر لیتے: کارامازوف۔ اس نام کے ساتھ ایک عجیب سا تاثر جڑا تھا، جیسے شور، شراب، ضد اور کسی پوشیدہ گناہ کی بو۔ اس خاندان کا سربراہ تھا فیودور پاولووچ کارامازوف، ایک ایسا آدمی جو عمر کے ساتھ نہیں، چالاکیوں کے ساتھ بڑھا ہوا تھا۔ وہ مالدار تھا، مگر اس کی دولت میں وقار نہیں تھا۔ وہ قہقہہ لگاتا تو لگتا جیسے کسی کے زخم پر نمک چھڑک رہا ہو۔ وہ اپنی حرکتوں سے کبھی شرمندہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ شرمندگی کو بھی مذاق بنا کر پیش کرتا۔ اسے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مسخرہ بن کر پیش کرنا برا نہیں لگتا تھا، کیونکہ مسخرہ بن کر وہ بہت سی باتیں کہہ بھی دیتا اور بچ بھی جاتا۔ فیودور کی 2 شادیاں ہوئیں، اور دونوں ہی کہانیوں میں خوشی کم اور بدنصیبی زیادہ تھی۔ پہلی بیوی، نرم دل، حساس اور باوقار عورت، اس کے ساتھ زیادہ دن نہ رہ سکی۔ وہ جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گئی اور اس کے 2 بیٹے پیچھے رہ گئے۔ بڑا بیٹا دمتری، جسے گھر میں اکثر میتیا کہا جاتا، اور دوسرا بیٹا ایوان۔ دمتری، اس کے مزاج میں آگ تھی۔ وہ جذبات میں تیز، فیصلوں میں جلد باز اور محبت اور نفرت دونوں میں انتہا پسند تھا۔ جب وہ خوش ہوتا تو لگتا ساری دنیا اس کی ہے، اور جب وہ غصے میں آتا تو لگتا جیسے ساری دنیا اس کے خلاف ہے۔ اسے اپنی عزت بھی بہت عزیز تھی، اور اپنی بے عزتی کا وہ بدلہ بھی اسی شدت سے مانگتا تھا۔ ایوان، اس کے اندر آگ نہیں، سردی تھی، ایک ایسی سردی جو عقل کی چمک سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ پڑھا لکھا، گہرا سوچنے والا اور سوال کرنے والا تھا۔ اسے ہر بات میں دلیل چاہیے تھی، ہر یقین سے پہلے ثبوت۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاموش سی اداسی تھی، جیسے وہ زندگی کو سمجھ تو رہا ہو مگر قبول نہیں کر پا رہا۔ اور اسی سرد عقل کے ساتھ ایوان نے خود کو دنیا کے بیچ ایک تماشائی بنا لیا تھا۔ وہ سب کچھ دیکھتا تھا، سب کچھ سمجھتا تھا، مگر اندر کہیں نہ کہیں ایک سوال اس کے سینے میں اٹکا رہتا تھا: اگر سب باتیں دلیل سے طے ہوتی ہیں تو پھر دل کیوں نہیں مانتا؟ اور پھر تیسرا بھائی تھا الیکسئی، جسے سب پیار سے الیوشا کہتے تھے۔ اس کے مزاج میں نہ دمتری جیسا طوفان تھا، نہ ایوان جیسی برف۔ الیوشا جیسے کسی اور دھات سے بنا تھا، نرم، خاموش اور حد سے زیادہ حساس۔ وہ لوگوں کی باتیں صرف سنتا نہیں تھا، وہ انہیں اپنے اندر جذب کر لیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سچائی تھی، ایسی کہ سامنے والا چاہے جتنا جھوٹ بولے خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ اسی لیے لوگ کبھی اسے سادہ لوح کہتے اور کبھی چپکے سے اسے خطرناک بھی سمجھتے تھے، کیونکہ سچائی بعض اوقات تلوار سے زیادہ کاٹتی ہے۔ الیوشا کی یہی سچائی اسے گھر کے شور سے الگ کرتی تھی۔ کارامازوف کا گھر ایسا نہیں تھا جہاں بچپن سانس لیتا۔ وہاں یا تو بحث ہوتی تھی یا تماشا۔ باپ کی آواز اکثر قہقہے میں لپٹی ہوتی، مگر اس قہقہے کے نیچے ایک بے رحم خود غرضی چھپی رہتی۔ فیودور پاولووچ کو اپنے بچوں کی پرورش میں کم دلچسپی تھی، اپنی خواہشوں میں زیادہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تینوں بھائیوں نے اپنے اپنے طریقے سے زندگی کا بوجھ اٹھایا، کسی نے غصے سے، کسی نے عقل سے اور کسی نے خاموشی سے۔ میتری، جسے میتیا کہتے تھے، بچپن کی محرومی کو آج تک اپنے لہجے میں اٹھائے پھرتا تھا۔ وہ باپ سے نفرت کرتا تھا، مگر اس نفرت میں صرف دل کی تلخی نہیں تھی، اس میں حق کا سوال بھی شامل تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے حصے کی وراثت، اس کے حصے کی رقم اور اس کے حصے کی عزت سب کسی نہ کسی بہانے سے دبائی گئی ہے۔ اور فیودور پاولووچ، وہ اسی یقین کو بار بار چھیڑ کر جیسے لطف لیتا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان ہر گفتگو ایک جنگ کی طرح شروع ہوتی اور ایک تماشے پر ختم ہوتی، یا پھر ایک نئے زخم پر۔ ایوان اس سب کو دیکھتا رہا، مگر وہ جلتا نہیں تھا، وہ سوچتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس خاندان میں سچ بھی ایک ہتھیار ہے اور جھوٹ بھی، اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ یہاں ہر شخص اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے۔ ایوان کے اندر سوال بڑھتے جا رہے تھے۔ اگر باپ باپ نہ رہے تو بیٹا کیا بن جاتا ہے؟ اگر انصاف صرف کاغذ پر ہو تو دل کہاں جائے؟ اور انہی سایوں کے بیچ ایک اور سایہ بھی تھا، سمردیاکوف۔ وہ نوکر تھا، مگر اس کی موجودگی گھر کے کمروں میں ایسے محسوس ہوتی جیسے دیواروں میں کوئی راز سانس لے رہا ہو۔ وہ کم بولتا تھا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا حساب تھا، جیسے وہ سب کچھ نوٹ کر رہا ہو۔ کون کس سے نفرت کرتا ہے، کون کس سے ڈرتا ہے،
और कौन किसके लिए खतरा बन सकता है। लोग उसे मामूली समझते, मगर बाज मामूली लोग ही कहानियों का रुख बदल देते हैं। वक्त के साथ साथ कस्बे में दो नाम ज्यादा सुनाई देने लगे और इन नामों के साथ कारामाज़ोव खानदान की लड़ाइयों में एक नया रंग आ गया। एक तरफ कातरीना इवानोवना थीं, वकार और उसूल की तस्वीर। वो ऐसी औरत थी जिसकी इज्जत उसकी सांसों की तरह थी, अगर कम हो जाए तो जीना मुश्किल। वो मजबूत दिखती थी, मगर उस मजबूती के नीचे एक अंदरूनी जिद भी थी, अपने फैसलों की जिद, अपने मायार की जिद और शायद अपनी मोहब्बत की जिद भी। दूसरी तरफ ग्रुशेनका थी, जिसके जिक्र पर लोगों की आंखों में या तो हसद उतरा था या खौफ। उसकी हंसी में कशिश थी, मगर उस कशिश के साथ एक सख्ती भी थी, जैसे वो दुनिया से धोखा खाकर अब किसी को आसानी से करीब ना आने देती हो। लोग उसे इल्जाम देते, मगर किसी ने ये ना पूछा कि इल्जामों के पीछे कभी कभी जख्म भी होते हैं। दमित्री का दिल और दमित्री का गुरूर दोनों इसी कश्मकश में फंसने लगे। कभी वो अपने आप को कातरीना के सामने जिम्मेदार साबित करना चाहता, कभी ग्रुशेनका की तरफ ऐसे खींचता जैसे आग की तरफ हाथ बढ़ाए, और इसी में वो खुद भी बिखरता, दूसरों को भी बिखेरता। उसकी जल्दबाजी उसे खुद अपनी ही नजर में कभी हीरो बनाती, कभी मुजरिम। अलियोशा को ये सब देखकर खौफ आता था, लेकिन वो ऐसा खौफ नहीं था जो आदमी को भगा दे, वो ऐसा खौफ था जो आदमी को जिम्मेदार बना दे। इसीलिए अलियोशा ने अपने लिए एक रास्ता चुना, खानकाह का रास्ता। वहां शोर कम था और दिल की आवाज ज्यादा। वहां एक बुजुर्ग थे, फादर जोसीमा, जिनकी खामोश नजर के सामने लोग अपने अंदर का सच छिपा नहीं पाते थे। जोसीमा किसी को डांटते नहीं थे, वो बस इंसान को उसके अपने आप के सामने खड़ा कर देते थे। अलियोशा जोसीमा के करीब रहने लगा। उसे लगता था कि शायद इसी सुकून में कारामाज़ोव की आग ठंडी हो सके, शायद दमित्री का गुस्सा कम हो, शायद इवान के सवालों को कोई सिमत मिले, शायद बाप भी कभी इंसान बन जाए। मगर कुछ कहानियां सुकून नहीं मांगती, तसादुम मांगती हैं। फिर कस्बे में एक खबर फैली कि फ्योदोर पाव्लोविच खानकाह आ रहे हैं, फादर जोसीमा से मिलने। लोग हंसे भी और चौंके भी। कुछ ने कहा यह आदमी बुजुर्ग के पास भी तमाशा करने जाएगा, कुछ ने कहा कोई फायदा लेने जा रहा है, और कुछ ने बस इतना कहा कारामाज़ोव है, कुछ भी हो सकता है। और इसी खबर के साथ यह भी वाज़ेह होने लगा कि इवान भी करीब ही है और दमित्री भी इस मुलाकात के लिए आएगा। अलियोशा ने दिल ही दिल में महसूस किया कि यह मुलाकात महज मुलाकात नहीं होगी। जब बाप और बेटे, नफरत और हक, अक्ल और गुस्सा सब एक जगह जमा हो तो खामोशी भी कांप जाती है। खानकाह की दीवारें पुरसुकून थीं, मगर हवा में एक बेनाम सा तनाव था, जैसे किसी ने कहानी के पन्ने पर उंगली रख दी हो और अब अगला जुमला धमाके की तरह लिखा जाने वाला हो। और फिर वाकई अगला जुमला खानकाह के दरवाजे पर लिखा गया। सुबह की सर्दी में जब खानकाह के सहन पर धुंध बैठती है तो कदमों की आहट भी साफ सुनाई देती है। अलियोशा अंदर ही अंदर कांप रहा था, मगर वो कांपना डर का नहीं था, किसी आने वाले तूफान की पेशगी खबर का था। राहदारियों में लकड़ी की खुशबू थी, दीवारों पर खामोशी चिपकी हुई थी, और दूर कहीं घंटी की हल्की सी आवाज जैसे वक्त को भी आहिस्ता चलने की तलकीन कर रही हो। तभी बाहर से हंसी की एक गैर मुनासिब सी लहर अंदर आई, ऐसी हंसी जो इस जगह के वकार से लड़ती थी। अलियोशा ने पहचान लिया, ये कहकहा बाकायदा अंदर आने का मुंतजिर नहीं होता, ये सीधा घुस आता है। फ्योदोर पाव्लोविच आ चुका था। वो चलते हुए भी जैसे स्टेज पर होता, लिबास ठीक था मगर मिजाज बेतुका, आंखें इधर उधर, जैसे हर चेहरे में वो कमजोरी ढूंढ रहा हो जिस पर चुटकी ली जा सके। उसके साथ दो आदमी और थे, एक निस्बतन संजीदा और कदरे अकड़ा हुआ म्यूसोफ, जिसके चेहरे से लगता था कि उसे यहाँ आना मजबूरी है, शौक नहीं। दूसरा जवान राकीतन, जिसकी आंखों में दिलचस्पी बहुत थी और एहतराम कम। वो ऐसे देख रहा था जैसे किसी घर के झगड़े का बेहतरीन मंजर आज उसे मुफ्त मिलने वाला है। अलियोशा ने आगे बढ़कर फात को सलाम किया। फ्योदोर पाव्लोविच ने जैसे सलाम नहीं, मौका देखा। उसने अलियोशा के सर पर हाथ रखा, फिर फौरन ऐसे अंदाज में मुस्कुरा दिया कि लगे ये हाथ शफकत का नहीं, मलकियत का है। तो ये मेरा मुकद्दस बेटा है? उसकी आवाज में तमस्खुर भी था और फख्र भी, दोनों एक साथ। यहां मुझे बचा लेगा? हाँ,
अलियोशा ने कुछ न कहा, खामोशी ही उसकी ढाल थी। वो सिर्फ इतना चाहता था कि ये लोग जल्दी से अंदर चले जाएं और जूसीमा के सामने कोई ऐसी बात न हो जो खानकाह की फिजा को आलूदा कर दे। लेकिन कारामाजोफ के साथ आलूदा होना हमेशा साथ चलता है। अंदर बुजुर्ग जूसीमा बैठे थे। कमरा सादा था, कम रोशनी, कम सामान, ज्यादा सुकून। मगर सुकून की अपनी एक ताकत होती है, वो अंदर आते ही आदमी के गुरूर को नापने लगता है। अलियोशा ने देखा कि फ्योदोर पाव्लोविच जैसे लम्हा भर को रुका, जैसे इस ताकत को महसूस करके भी उसे हंसी में उड़ा देने का फैसला कर रहा हो। जूसीमा ने सर उठाकर सबको देखा। उनकी नजर में कोई सख्ती नहीं थी, मगर इस नजर के सामने आदमी अपना बनावटी चेहरा ज्यादा देर नहीं रख पाता। म्यूसोफ ने अदब से सर झुकाया, राकीतन ने भी रस्मी सा झुकाव किया, और फ्योदोर पाव्लोविच, उसने अजीब सी हरकत की। कभी जैसे बहुत आजिजी दिखाने लगा, कभी जैसे मजाक। वो बैठा तो ऐसा जैसे बैठने में भी ताना हो। बात शुरू हुई तो पहली चंद जुमलों में ही अंदाजा हो गया कि फ्योदोर पाव्लोविच यहाँ हिदायत लेने नहीं आया, यहाँ तमाशा करने आया है। वो अपनी बातों में मजहब को भी छेड़ता, लोगों की नीयतों को भी, और फिर खुद ही कहकहा लगा देता। उसके जुमले छुरी की तरह नहीं थे, मगर कांटे की तरह थे, चुभते भी थे और निकालना भी मुश्किल। म्यूसोफ के माथे पर शिकने गहरी होने लगी, राकीतन की आंखों में चमक बढ़ गई, और अलियोशा, वो बस ये देख रहा था कि जूसीमा के चेहरे पर न गुस्सा है न हैरत, सिर्फ एक खामोश समझ। फिर बात आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ मुड़ गई जिस तरफ इसे मुड़ना ही था, बाप और बेटे के झगड़े की तरफ। विरासत, रकम, हक और वो पुराने हिसाब जो कभी खत्म नहीं होते। फ्योदोर पाव्लोविच ने चंद ऐसे जुमले कहे जिनमें सच भी था, मगर सच ऐसे बोला गया था जैसे गंदगी उछाली जा रही हो। और म्यूसोफ ने जैसे अपनी बेजारी छुपाते छुपाते थक कर एक दो बार सख्त लहजे में उसे टोका। इसी लम्हे बाहर से तेज कदमों की आवाज आई और कमरे की फिजा में जैसे किसी ने हवा रोक दी। दरवाजा खुला और दिमित्री अंदर आया। वो ऐसे दाखिल हुआ जैसे किसी अदालत में हाजिर हुआ हो। आंखों में आग, चेहरे पर थकन और सांस में वो बेचैनी जिसे इंसान छुपा नहीं सकता। उसकी नजर पहले बाप पर पड़ी, फिर जूसीमा पर, फिर कमरे में मौजूद दूसरों पर। दिमित्री ने सलाम किया, मगर इस सलाम में भी झुकाव कम और रस्म ज्यादा थी। वो अपने अंदर किसी धमाके को काबू में रखे हुए था। फ्योदोर पाव्लोविच ने उसे देखकर फौरन जैसे तेल डाला। आ गया मेरा शेर, आ गया मेरा वारिस, और फिर हंसा, वही चुभती हुई हंसी। दिमित्री के अंदर जैसे कोई चीज टूटकर फिर जुड़ गई। वो बाप की हंसी सुनकर एक लम्हे को आगे झपटा, मगर फौरन रुक गया, जैसे उसे याद आ गया हो कि ये जगह खानकाह है और सामने जोसीमा बैठे हैं। मगर जब्त की दीवार जितनी ऊंची हो, गुस्सा उतना ही जोर से अंदर धड़कता है। उसने गहरा सांस लिया और भारी आवाज में कहा, बस काफी है, तुम्हें शर्मिंदगी भी नहीं आती? फ्योदोर पाव्लोविच ने फौरन हाथ उठाकर जैसे मासूम बनने की कोशिश की। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, यहां सब कुछ रूहानी है ना। फिर वो अपनी ही बात पर हंसा, मगर अब हंसी में जरा घबराहट भी थी, क्योंकि दिमित्री की आंखों में वो चिंगारी साफ दिखाई दे रही थी जो कभी भी शोला बन सकती थी। म्यूसोव ने खंकार कर फिजा को संभालने की कोशिश की। ये जगह तमाशे के लिए नहीं है, फ्योदोर पाव्लोविच। राकेकन ने नजरें इधर उधर दौड़ाईं, जैसे हर जुमला उसके लिए खुराक हो। अल्योशा का दिल जैसे सीने में बंद हो गया। वो बस जोसीमा के चेहरे को देख रहा था। वहां ना गुस्सा था ना हैरानी, सिर्फ एक खामोश सी बेदारी, जैसे वो आने वाले कदमों की आवाज पहले ही सुन चुके हों। दिमित्री ने बाप की तरफ रुख किया। मेरे हक की बात यहां होगी। तुमने मेरा हिस्सा दबा रखा है, तुमने वादे किए फिर मुकर गए, तुमने मुझे भिखारी बनाकर छोड़ा, और खुद। वो जुमला मुकम्मल न कर सका, शायद इसलिए कि जोसीमा के सामने कुछ लफ्ज गुनाह की तरह महसूस होते हैं, चाहे सच ही क्यों ना हो। मगर सच भी जब गुस्से के साथ निकले तो तलवार बन जाता है। फ्योदोर पाव्लोविच ने आंखें फैलाकर कहा, कौन सा हक, कौन सा हिस्सा? तुमने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की, अब इल्जाम मेरे सर। उसने ये बात यूं कही जैसे अपना दिफा नहीं, हमला कर रहा हो। फिर वो जरा सा झुका, जैसे किसी मुकद्दस शख्स के सामने आजिजी दिखा रहा हो, और फौरन ही दोबारा तंज पर आ गया। हजरत जोसीमा, देखिए ना, मेरा बेटा मुझ पर जुल्म कर रहा है।
दिमित्री के हाथ कांपे। वो अपनी मुट्ठी बंद करके खोलता, फिर बंद कर लेता, जैसे खुद को याद दिला रहा हो कि हाथ उठ गया तो सब कुछ बदल जाएगा। म्यूसोव ने सख्त लहजे में कहा, ये गुफ्तगू बंद कीजिए, यहां खानदान के गंदे हिसाब नहीं लाए जाते। दिमित्री ने उसकी तरफ एक नजर डाली, वो नजर जिसमें एहतराम कम और जख्म ज्यादा था। ये गंदे हिसाब नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। अल्योशा आगे बढ़ा, बहुत आहिस्ता, जैसे शीशे के फर्श पर चल रहा हो। भाई बस। मगर दिमित्री ने अल्योशा की तरफ देखा तो एक लम्हे को उसकी आंखों में नमी सी उभरी और फिर फौरन गुस्से ने उसे ढांप लिया। तुम अच्छे हो अल्योशा, मगर तुम समझते नहीं। तभी जोसीमा ने दिमित्री को ऐसे देखा जैसे वो सिर्फ उसके अल्फाज नहीं, उसके अंदर की लर्जिश भी सुन रहे हों। कमरे में एक गहरी खामोशी उतरी, हत्ता कि फ्योदोर पाव्लोविच भी चंद लम्हों के लिए रुक गया, जैसे उसे भी अंदाजा हो गया हो कि अब अगली हरकत के बाद वापसी आसान नहीं रहेगी। और फिर अचानक जोसीमा ने अपना सर झुकाया और दिमित्री के सामने जमीन को छू लिया। वो लम्हा कमरे पर छा गया, जैसे किसी ने सांस रोक दी हो। म्यूसोव के चेहरे पर सदमा था। राकेटन जैसे अंदर से कांप कर भी खुश हुआ, क्योंकि ये मंजर याद रह जाने वाला था। फ्योदोर पाव्लोविच की हंसी गले में अटक गई और दिमित्री जैसे पत्थर हो गया। उसने एक कदम पीछे हटाया, उसकी आवाज लरज गई। आपने ये क्यों किया? जोसीमा ने कुछ देर कोई जवाब न दिया, सिर्फ इतना कहा, बहुत आहिस्ता, जैसे दिल की दीवार पर हाथ रख कर बोल रहे हों। गुस्सा बहुत भारी होता है बेटे, उसे उठाने वाला खुद भी जख्मी हो जाता है। दिमित्री की आंखें झुक गईं। वो जो अभी बाप को फाड़ डालने के मूड में था, अब खुद अपने ही अंदर घबरा गया, जैसे उसे डर लगने लगा हो कि कहीं उसके अंदर वाकई कोई ऐसी हद ना हो जिसके बाद वो वापस खुद ना रहे। फ्योदोर पाव्लोविच ने जल्दी से हंसी का सहारा लिया, मगर अब वो हंसी पहले जैसी मजबूत नहीं थी। ये तो कमाल हो गया, मेरे लिए नहीं झुके, मेरे बेटे के लिए झुक गए। लेकिन इस बार किसी ने उसके कहकहे का साथ नहीं दिया। अल्योशा के हलक में कुछ अटक गया। उसे लगा जैसे जोसीमा ने जो किया वो महज आजिजी नहीं, कोई इशारा है, कोई पेशगी साया। ईवान जो अब तक निस्बतन खामोश था, बस देखता रहा। उसकी आंखों में पहली बार सोच के साथ साथ एक धुंधला सा खौफ भी था, जैसे अक्ल भी मान रही हो कि कुछ हादसे दलील से पहले आ जाते हैं। चंद लम्हों बाद सब लोग उठने लगे। बात खत्म नहीं हुई थी, मगर कमरा उस वक्त मजीद अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दिमित्री ने जाते हुए एक बार बाप को देखा। उस नजर में नफरत भी थी और एक दर्द भी, जैसे वो कह रहा हो, मैं तुमसे लड़ रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे हारा हुआ हूं। दरवाजा बंद हुआ तो खानकाह की खामोशी वापस आ गई, मगर पहले जैसी नहीं। अब इस खामोशी के अंदर एक धीमी सी गूंज थी, इस मुलाकात की, इस झुकाव की और उस आग की जो अभी पूरी तरह भड़की नहीं थी। और अल्योशा ने दिल ही दिल में महसूस किया, ये किस्सा अब सिर्फ झगड़ा नहीं रहा, अब ये तकदीर की तरफ बढ़ने लगा है। खानका के सहन में कदम रखते ही सर्द हवा ने सबके चेहरों को छुआ, मगर दिलों की गर्मी कम न हुई। दिमित्री तेज तेज चल रहा था, जैसे अगर रुक गया तो अंदर की आग फिर भड़क उठेगी। उसके कदमों में बेतरतीबी थी और सांसों में वही पुराना गुस्सा, बस अब उसके साथ एक नया खौफ भी जुड़ चुका था। पीछे अल्यूशा खामोशी से आ रहा था। उसकी नजरें जमीन पर थीं, मगर दिल दिमित्री के कदमों के साथ बंधा हुआ था। वो जानता था कि अभी कुछ टूटा नहीं है, मगर दरार आ चुकी है, और बाज दरारें वक्त के साथ भरने के बजाय मजीद फैलती हैं। फ्योदोर पाव्लोविच सहन में पहुंचते ही जैसे खुद को फिर संभालने लगा। उसने गर्दन झटकी, कहकही की एक हल्की सी नकल की, मगर आवाज पूरी तरह नहीं निकली। जोसीमा के झुकने का मंजर अब भी उसके जहन में किसी कांटे की तरह चुभ रहा था। वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था कि कोई उसके बेटे के सामने, उसके सामने नहीं, झुक जाए। ड्रामा था, बस ड्रामा, उसने खुद से कहा, मगर उसके लफ्ज खुद उसे कमजोर लगे।
यूसुफ ने खामोशी से कोट दुरुस्त किया। उसके चेहरे पर वही बेजारी थी, मगर अब उसमें बेचैनी भी शामिल हो गई थी। उसे पहली बार साफ नजर आ रहा था कि ये खानदान महज इखलाकी जवाल की मिसाल नहीं, ये किसी बड़े हादसे की तमहीद भी हो सकता है। चंद लम्हों के लिए सब खामोश रहे। सहन में बस हवा की सरसराहट थी और कहीं दूर घंटी की मध्यम आवाज। मगर इस खामोशी में सुकून नहीं था। ये वो खामोशी थी जो किसी फैसले से पहले आती है। राकिटिन ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए। उसके चेहरे पर संजीदगी कम और तजस्सुस ज्यादा था। वो इस दिन को जहन में महफूज कर रहा था, हर जुमला, हर चेहरा, हर खामोश लम्हा। उसके लिए ये सब एक कहानी थी और वो जानता था कि ऐसी कहानियां आम नहीं होती। अलूशा ने दिमित्री की तरफ देखा। वो अब रुक चुका था, मगर उसका जिस्म अब भी तनाव में था। उसकी मुट्ठी बंद थी और आंखें कहीं दूर जमी हुई थीं, जैसे वो खानकाह की दीवारों से परे कुछ देख रहा हो, शायद अपना मुस्तकबिल, शायद अपनी तबाही। दिमित्री ने आहिस्ता से आंखें ढबकाईं, जैसे किसी ख्याल से खुद को आजाद करना चाहता हो। उसने गहरी सांस ली, मगर वो सांस भी उसके सीने का बोझ हल्का न कर सकी। उसके अंदर एक जंग चल रही थी, गुस्से और समझदारी के दरमियान। अलियोशा ने हिम्मत करके फिर बात की, भाई, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। उसके लफ्ज नर्म थे, मगर उनमें उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी थी। दिमित्री ने तलखी से मुस्कुराने की कोशिश की। खत्म? उसने सर हिलाया। ये तो अब शुरू हुआ है अलियोशा। उसकी आवाज में थकन थी और एक ऐसा यकीन जो डर से जन्म लेता है। राकितिन कुछ फासले पर खड़ा सब देख रहा था। वो खामोश था, मगर उसकी आंखें बोल रही थीं। उसे अंदाजा हो चुका था कि ये खामोश लम्हे बाद में बहुत शोर मचाएंगे। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि इंसान खुद अपनी तबाही के कितने करीब खड़ा होता है और फिर भी खुद को महफूज समझता है। इसी वक्त ईवान ने आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाए। उसका चेहरा संजीदा था और आंखों में वही पुराना सवाल। हम सब यहां एक ही बात पर उलझे हुए हैं, उसने धीमी आवाज में कहा, हक और उसकी कीमत। ईवान के अल्फाज सहन में देर तक ठहरे रहे। किसी ने फौरन कुछ नहीं कहा, जैसे हर एक उस कीमत को अपने अपने दिल में तोल रहा हो। दिमित्री ने जमीन की तरफ देखा। उसकी आवाज अब जरा धीमी थी। अगर कीमत में सब कुछ आ जाए तो फिर हक किस काम का? यह सवाल गुस्से से नहीं, थकन से निकला था। अलियोशा ने एक कदम आगे बढ़ाया। शायद हक का मतलब जीत नहीं होता, उसने आहिस्ता कहा। शायद इसका मतलब सिर्फ सच के साथ खड़ा रहना होता है। राकिटन ने हल्की सी सांस ली, जैसे वो मुस्कुराना चाहता हो मगर मौका मुनासिब ना हो। उसके जहन में ये बात साफ थी कि सच भी हर एक के लिए एक जैसा नहीं होता। कुछ के लिए सच सहारा बनता है और कुछ के लिए हथियार। हवा जरा तेज हो गई। सहन के पत्तों ने सरसराहट के साथ जैसे सरगोशी की। खानकाह की दीवारें वहीं थीं, मगर माहौल बदल चुका था। दिमित्री ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया, जैसे उसका दिल उसे किसी और सिमत खींच रहा हो और दिमाग कुछ और कह रहा हो। उसने आहिस्ता से कहा, मैं लड़ाई नहीं चाहता, मगर खामोश भी नहीं रह सकता। अलियोशा ने उसकी बात गौर से सुनी। उसने सर हिलाया, जैसे वो दिमित्री के अंदर की उलझन को समझ रहा हो। खामोशी भी कभी कभी चीख बन जाती है, उसने धीरे से कहा। ईवान ने नजरें उठाकर आसमान की तरफ देखा। बादल आहिस्ता आहिस्ता सड़क रहे थे। उसने सोचा कि इंसान भी शायद ऐसे ही होते हैं, अपनी जगह से हिलते हुए, मगर ये न जानते हुए कि कहां जा रहे हैं। हर फैसला एक रास्ता बंद करता है और एक नया रास्ता खोल देता है, उसने संजीदगी से कहा, और एक नया रास्ता खोल देता है। राकितन ने बात काटने के बजाय खामोश रहना बेहतर समझा। वो जानता था कि इस लम्हे में बोलना फायदा नहीं देगा। कुछ बातें वक्त के साथ ही अपना मतलब वाज़ेह करती हैं। हवा में हल्की सी नमी आ गई थी। बादल और करीब आते महसूस हो रहे थे, जैसे बारिश खुद को रोक कर खड़ी हो। सहन में मौजूद सब लोग अब आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर होने लगे, मगर किसी के कदमों में सुकून नहीं था। दिमित्री ने मुट्ठी खोली, फिर बंद की। उसने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, मैं जानता हूं, अब पीछे हटना आसान नहीं रहेगा। उसके लफ्जों में एतराफ था और एक अनजाना सा खौफ।
अल्यूशा उसके करीब आया। उसकी आवाज नर्म थी। अकेला मत रहना भाई। ये जुमला मुख्तसर था, मगर इसमें साथ देने का वादा छुपा हुआ था। दिमित्री ने सर हिलाया, मगर उसकी नजरें जमीन से ना उठीं, जैसे वो खुद को ही जवाब दे रहा हो। ईवान ने दोनों को देखा, फिर नजरें हटा ली। उसके अंदर एक अजीब सा बोझ था। वो जानता था कि जो होने जा रहा है वो सिर्फ जज्बात का नतीजा नहीं होगा, उसमें सोच भी शामिल होगी, और शायद खामोश रजामंदी भी। राकीतन अभी सहन के एक कोने में खड़ा था। वो सबको जाता हुआ देख रहा था, मगर खुद हिलने की जल्दी में नहीं था। उसके जहन में आज के मनाजिर बार बार लौट रहे थे, अल्फाज, चेहरे और वो खामोश वक्फे जो असल बात कह गए थे। उसने आहिस्ता से सोचा कि इंसान कभी कभी फैसला न करके भी फैसला कर लेता है, और यही बात उसे सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रही थी। दूसरी तरफ ईवान तन्हा चलने लगा। उसके कदम नापे हुए थे, मगर जहन बेकरार। उसके सवाल अब किसी से पूछने के लिए नहीं रहे थे, वो सवाल अब उसी के अंदर गूंज रहे थे। अगर सब कुछ समझ में आ जाए, उसने दिल ही दिल में कहा, तो क्या जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है? अल्यूशा ने एक लम्हे को पीछे मुड़कर देखा। सहन अब तकरीबन खाली था। हवा ठंडी हो चुकी थी और बादल आहिस्ता आहिस्ता फैल रहे थे। उसने महसूस किया कि यह दिन खत्म हो रहा है, मगर इस दिन का असर बाकी रहेगा। दमित्री सबसे आखिर में रुका। उसने खानकाह की दीवारों को एक बार गौर से देखा, जैसे वो इस सुकून को याद रखना चाहता हो, शायद आखिरी बार। फिर उसने आहिस्ता से कहा, जो भी हो, अब पीछे नहीं जाऊंगा। दिमित्री के ये अल्फाज हवा में मुअल्लक रहे, जैसे वो खुद भी सुनना चाहता हो कि उसने क्या कहा है। उसने आहिस्ता से सर झटका और कदम आगे बढ़ा, मगर दिल अभी पीछे ही कहीं अटका हुआ था। अल्यूशा खामोशी से उसके पीछे चलने लगा। वो जानता था कि इस वक्त बोलना फायदा नहीं देगा। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जहां सिर्फ साथ चलना ही काफी होता है। ईवान दूर जा चुका था, मगर उसकी सोचें अब भी उसी सहन में थीं। उसे महसूस हो रहा था कि आज उसने सिर्फ एक मंजर नहीं देखा, बल्कि एक हद को छुआ है। वो हद जहां अक्ल और जिम्मेदारी एक दूसरे से टकरा जाती हैं। राकितन ने आखिरकार सहन छोड़ने का फैसला किया। उसके कदम हल्के थे, मगर जहन भरा हुआ था। वो जानता था कि ये कहानी अब खामोश नहीं रहेगी। आज की बातें कल के अमल बनेंगी। खानकाह पीछे रह गई, खामोश, सादा और बेखबर। मगर इस खामोशी के बाहर जिंदगी अपनी पूरी शिद्दत के साथ इंतजार कर रही थी, और कारामाज़ोव खानदान अब उस शिद्दत की तरफ बढ़ रहा था। शाम आहिस्ता आहिस्ता कस्बे पर उतर रही थी। आसमान का रंग बदल रहा था और गलियों में लंबे साए फैलने लगे थे। खानकाह की खामोशी अब पीछे रह गई थी और दुनिया की आवाजें दोबारा सुनाई देने लगी थीं। दिमित्री तेज कदमों से चल रहा था। उसके जहन में एक ही बात गर्दिश कर रही थी, वो पीछे नहीं हटेगा। मगर इसी जिद के साथ उसके दिल में एक हल्का सा खौफ भी था, जैसे वो जानता हो कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। अल्यूशा उसके साथ था, खामोश मगर मोहतात। वो हर कदम पर यह महसूस कर रहा था कि अब उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। वो सिर्फ भाई नहीं रहा था, वो एक गवाह भी था, हर फैसले का, हर बदलते लम्हे का। ईवान अकेला अपने रास्ते पर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था, मगर अंदर सवालों का शोर। वो सोच रहा था कि अगर इंसान सब कुछ समझ ले तो क्या वो माफ भी कर सकता है, या समझ इंसान को और सख्त बना देती है। राकीतन ने शहर की तरफ मुड़ते हुए एक नजर पीछे डाली। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर वो खुशी की नहीं थी। ये इस एहसास की मुस्कुराहट थी कि कहानी अब वाकई शुरू हो चुकी है। कस्बा अपनी मामूल की रफ्तार से चल रहा था, मगर कारामाज़ोव खानदान के लिए कुछ भी अब मामूल का नहीं रहा था, और ये सिर्फ इब्तिदा थी। रात आहिस्ता आहिस्ता कस्बे पर फैलने लगी। घरों की खिड़कियों में चिराग जल उठे और सड़कों पर चलने वाले लोग अपने अपने कामों में मसरूफ रहे। मगर इस आम सी रात में कुछ दिल गैर मामूली बोझ उठाए चल रहे थे। दिमित्री ने कदम सुस्त कर दिए। शोर भरी गली में भी वो खुद को तन्हा महसूस कर रहा था। उसके जहन में बाप की हंसी, जोसीमा का झुकना और अल्यूशा की खामोश आंखें एक एक करके उभरने लगीं। उसने खुद से कहा, मैं कमजोर नहीं हूं,
मगर ये जुमला उसके दिल को पूरी तरह मुतमईन न कर सका। अलियोशा उसके साथ साथ चलता रहा। उसकी नजर सामने थी मगर दिल दुआ में। वो जानता था कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे, मगर वो ये भी जानता था कि अगर अंधेरे में कोई चिराग बन सकता है तो वो साथ रहने से ही बनेगा। ईवान अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम पुरसुकून थे मगर ज़हन बेकरार। उसने सोचा कि आज जो कुछ हुआ वो शायद नागज़ीर था, और यही ख्याल उसे सबसे ज्यादा बेचैन कर रहा था। अगर सब कुछ नागज़ीर हो तो इंसान की जिम्मेदारी कहाँ जाती है? राकीतन ने शहर के शोर में खुद को गुम कर लिया। उसके लिए ये रात आम थी, मगर अंदर कहीं एक खुशी छुपी थी। उस खुशी की कहानियों वाली खुशी। वो जानता था कि आगे जो होगा वो सुनने और सुनाने के काबिल होगा। रात गहरी होती गई और कारामाजूफ खानदान की कहानी भी। खामोशी, सवाल और जिद सब एक साथ आगे बढ़ रहे थे। रात के सन्नाटे में कदमों की आवाजें मध्यम हो गई थीं। कस्बा सो रहा था, मगर कुछ जहन जाग रहे थे। ऐसे जहन जो नींद को कबूल नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर सवाल जिंदा होते हैं। दिमित्री अपने कमरे में पहुंचा। उसने दरवाजा बंद किया, मगर सुकून अंदर न आया। वो कमरे में टहलने लगा, कभी रुकता, कभी दीवार की तरफ देखता। उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, क्या वो वाकई ठीक कर रहा है? मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को सख्ती से कहा, नहीं, अब पीछे नहीं हटूंगा। अलूशा देर तक जागता रहा। वो खामोशी से बैठा था, हाथ आपस में जुड़े हुए। उसके दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी। उसे लग रहा था कि किसी बड़े इम्तिहान का वक्त करीब आ रहा है, और इस इम्तिहान में सिर्फ सच ही सहारा बनेगा। ईवान ने चिराग बुझा दिया, मगर अंधेरा कम ना हुआ। वो बिस्तर पर लेटा, आंखें छत पर जमी रहीं। उसके सवाल अब और गहरे हो गए थे। अगर इंसान सब कुछ समझ ले, वो सोचने लगा, तो क्या वो बेकसूर रह सकता है? राकीटन ने शहर के एक कोने में रुककर आसमान की तरफ देखा। सितारे साफ थे और रात पुरसुकून। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सोचा कि ये सुकून ज्यादा देर नहीं रहेगा। रात अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही, और कहानी भी। कुछ फैसले खामोशी में पक रहे थे, और कुछ अंजाम आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे थे। सुबह की हल्की सी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खिड़कियों से अंदर आने लगी। रात खत्म हो रही थी, मगर सवाल अभी जिंदा थे। कस्बा जागने की तैयारी कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दमित्री ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। वो पूरी रात सो नहीं सका था। उसके जिस्म में थकन थी, मगर दिल में एक अजीब सी सख्ती। उसने खुद से कहा, आज सब कुछ बदल सकता है। यह ख्याल उसे डराता भी था और मजबूत भी बनाता था। अलियोशा ने सुबह की दुआ के बाद कुछ देर खामोशी में गुजारा। उसके दिल में एक भारी एहसास था, जैसे आने वाला दिन मामूल का नहीं होगा। वो जानता था कि आज उसे सिर्फ सुनना नहीं पड़ेगा, आज शायद फैसला भी करना पड़े। ईवान खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। सड़क पर लोग आ जा रहे थे, आवाजें लौट आई थीं। उसने सोचा कि दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रहती है, चाहे इंसान के अंदर तूफान क्यों ना हो। शायद यही सबसे बड़ी सच्चाई है, उसने दिल में कहा। राकीतन ने सुबह की हवा में एक नयापन महसूस किया। उसने मुस्कुराकर सोचा कि आज की खबरें कल की बातें बनेंगी, और वो बातें किसी न किसी को बदल देंगी। दिन शुरू हो चुका था, मगर कहानी अभी पूरी तरह खुली नहीं थी। ये वो वक्त था जब छोटे कदम बड़े अंजाम की तरफ बढ़ रहे थे। दिन की रोशनी तेज होने लगी थी। कस्बे की गलियों में मामूल की चहल पहल शुरू हो गई। दुकानें खुलने लगीं, आवाजें बुलंद हुईं, मगर कुछ दिल अब भी खामोश थे। दिमित्री ने तैयार होते हुए आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में नींद कम और जिद ज्यादा थी। उसने कोट सीधा किया और आहिस्ता से कहा, आज मैं भागूंगा नहीं। ये अल्फाज कमजोर नहीं थे, मगर इनके पीछे एक बोझ जरूर था। अलियोशा बाहर निकला तो सुबह की ठंडी हवा ने उसका इस्तकबाल किया। उसने एक लम्हे को रुककर आसमान की तरफ देखा। दिल में दुआ थी,
मगर साथ ही एक एहसास भी कि दुआ के बाद अमल भी आता है। ईवान सड़क पर चलते हुए लोगों के चेहरों को देख रहा था। सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। उसे लगा जैसे जिंदगी सवालों से बेखबर आगे बढ़ती है और शायद इंसान ही है जो सवालों का बोझ उठाता है। राकीटन एक दुकान के पास रुका। उसने बातों के टुकड़े सुने, हंसी देखी, मामून देखा। उसके दिल में ख्याल आया कि बड़े वाकयात अक्सर आम दिनों में ही जन्म लेते हैं। वक्त आगे बढ़ रहा था और हर कदम कहानी को एक नए मोड़ की तरफ ले जा रहा था। ये दिन खामोश नहीं रहेगा, ये दिन अपनी आवाज बनाएगा। दिन अब पूरी तरह जाग चुका था। सूरज की रोशनी गलियों में साफ दिखाई दे रही थी और कस्बा अपनी मामूल की रफ्तार पकड़ चुका था। मगर इस मामूल के नीचे एक बेचैनी छिपी हुई थी, जैसे हवा में कोई अनकही बात खुली हो। दिमित्री घर से बाहर निकला। उसके कदम मजबूत थे मगर दिल में हलचल थी। हर गुजरता हुआ चेहरा उसे अजनबी लग रहा था, जैसे सब कुछ जानते हों और वही न जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। उसने खुद को संभाला और तेज कदमों से चल पड़ा। आज वो टालने के मूड में नहीं था। अलियोशा कुछ फासले पर था। वो दिमित्री को देख रहा था मगर रोक नहीं रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि बाज रास्तों पर इंसान को अकेला ही चलना पड़ता है। फिर भी उसने दिल में तय किया कि अगर दिमित्री लड़खड़ाएगा तो वो करीब ही होगा। ईवान एक छोटे से चौक के पास रुका। वहां लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, बहस कर रहे थे। उसे अजीब लगा कि जिंदगी कितनी आसान लगती है जब आदमी सिर्फ बाहर से देखे, मगर अंदर। उसने आहिस्ता से सोचा, शायद असल जंग हमेशा अंदर ही होती है। राकीटन ने किसी से रस्मी सी बात की, मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। मगर उसका ध्यान हर आवाज पर था, हर खबर पर। उसे अंदाजा था कि आज जो कुछ भी होगा वो सिर्फ एक शख्स तक महदूद नहीं रहेगा। कस्बा बातें बनाएगा, कहानियां घड़ेगा और सच कहीं ना कहीं बदल जाएगा। वक्त तेजी से गुजर रहा था। हर घंटा, हर लम्हा किसी ना किसी फैसले के करीब। और कारामाजोव खानदान के लिए ये दिन अब सिर्फ एक दिन नहीं रहा था। ये दिन इम्तिहान था, ये दिन हद थी और शायद ये दिन अंजाम की पहली सीढ़ी भी। ये दिन वाकई खाली नहीं था। दोपहर के करीब कस्बे में एक नाम बार बार सुनाई देने लगा, ग्रुशेंका। लोग सरगोशियों में बात कर रहे थे, नजरें बदल रही थीं और मुस्कुराहटों में छिपी हुई चिंगारियां साफ दिखाई दे रही थीं। दिमित्री का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ था और इससे भी ज्यादा फ्योदोर पाव्लोविच का। दिमित्री जब एक छोटे से सराय के करीब पहुंचा तो उसका दिल जोर से धड़का। यही वो जगह थी जहां ग्रुशेंका को आखिरी बार देखा गया था। उसने अंदर कदम रखा तो फजा में हंसी की हल्की सी बाज गश्त थी। ऐसी हंसी जो सुकून नहीं देती बल्कि और बेचैन कर देती है। ग्रुशेंका वहीं थी। उसकी हंसी में शोखी थी मगर आंखों में होशियारी। उसने दिमित्री को देखा तो मुस्कुराई, जैसे वो उसका इंतजार कर रही हो। तो आखिरकार आ ही गए, उसने आहिस्ता कहा। दिमित्री ने कुछ जवाब न दिया। उसके अंदर मोहब्बत, हसद और गुस्सा सब एक साथ जाग रहे थे। तुम यहां क्यों हो? उसने बस इतना पूछा। ग्रुशेंका ने कंधे उचकाए। जहां दिल ले जाए वहां जाना मेरा हक है। यह जुमला सादा था मगर दिमित्री के लिए आग बन गया। इसी वक्त कहीं दूर फ्योदोर पाव्लोविच भी बेचैन था। वो बार बार घड़ी देख रहा था, पैसे गिन रहा था और नौकर स्मर्दियाकोव को सवालिया नजरों से देख रहा था। वो आएगी ना? उसने बेसब्री से पूछा। स्मर्दियाकोव ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, शायद। इस एक लफ्ज में इतनी खामोशी थी कि फ्योदोर पाव्लोविच को अच्छा न लगा। ईवान शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा था। उसका जाना अचानक था मगर बेसबब नहीं। वो जानता था कि जो कुछ होने वाला है वो उसे अंदर से तोड़ सकता है। कुछ बातों से दूर रहना ही बेहतर होता है, उसने खुद से कहा, मगर ये कहकर भी वो मुतमईन न हुआ। अलूशा सब कुछ देख रहा था मगर कुछ कह नहीं पा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वाकयात एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तेजी से, खतरनाक अंदाज में। और वो जानता था कि अब कहानी मोहब्बत तक महदूद नहीं रहेगी। अब बात पैसे की थी, हक की थी और उस गुस्से की जो बरसों से दबता आ रहा था। ये दिन अभी खत्म नहीं हुआ था मगर साया लंबा हो चुका था और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कदम उठाने की तैयारी हो रही थी।
شام ڈھلنے لگی تھی اور قصبے کی فضا میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ دمتری سرائے سے باہر نکلا تو اس کے قدم لڑکھڑا گئے، نہ شراب سے نہ تھکن سے، بلکہ اس خیال سے کہ گروشنکا اب بھی اس کی پہنچ میں نہیں تھی۔ وہ سیدھا کاترینا ایوانوونا کے گھر کی طرف بڑھا۔ اس راستے پر چلتے ہوئے اس کے دل میں ایک پرانا بوجھ جاگ اٹھا، وعدوں کا بوجھ، قرض کا بوجھ اور اس عزت کا بوجھ جسے وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہ پایا تھا۔ کاترینا نے دروازہ کھولا تو اس کے چہرے پر وہی وقار تھا، مگر آنکھوں میں تھکن۔ تم پھر آئے ہو، اس نے آہستہ کہا۔ دمتری نے سر جھکا لیا۔ میں نے تم سے غلط کیا، مگر آج مجھے سچ بولنا ہے۔ اس کی آواز میں غرور کم اور بے بسی زیادہ تھی۔ کاترینا نے ایک لمحہ خاموشی میں گزارا، پھر اس نے ایک کاغذ نکالا، پیسے کا حساب، پرانا وعدہ اور وہ راز جسے وہ برسوں سے سنبھالے بیٹھی تھی۔ یہ سب تمہارا ہے، اس نے کہا، مگر قیمت کے ساتھ۔ دمتری کے ہاتھ کانپے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ رقم اسے بچا بھی سکتی ہے اور توڑ بھی سکتی ہے۔ میں اسے لوٹاؤں گا، اس نے کہا، مگر خود کو بھی یقین نہ دلا سکا۔ ادھر فیودور پاولوچ کے گھر میں رات کی تیاری ہو رہی تھی۔ دروازے بند، پردے گرے اور میز پر پیسے رکھے گئے تھے، جیسے کسی جشن کے لیے یا کسی خطرے کے لیے۔ سمردیاکوف خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جلدی نہیں تھی، بس حساب تھا۔ آج رات کچھ ہونے والا ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ ایوان شہر سے نکل چکا تھا، گاڑی کے پہیے گھوم رہے تھے، مگر اس کے ذہن میں وہی سوال چکر لگا رہا تھا، اگر میں نہ ہوتا تو کیا یہ سب رک جاتا؟ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جیسے جواب اندھیرے میں لکھا ہو۔ الیوشا قصبے کی گلیوں میں چل رہا تھا۔ اس کا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ سب کو اکٹھا کر لو، روک لو، مگر وہ جانتا تھا کہ اب وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ رات نے قدم رکھ دیا تھا، اور رات کے ساتھ وہ لمحہ بھی قریب آ رہا تھا جس کے بعد واپسی آسان نہیں رہتی۔ رات پوری طرح پھیل چکی تھی، گلیاں سنسان ہو رہی تھیں، مگر گھروں کے اندر بے چینی جاگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے قصبہ سانس روکے کسی ایک لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ دمتری اندھیرے میں تیزی سے چل رہا تھا۔ اس کے قدم اسے بار بار فیودور پاولوچ کے گھر کی طرف کھینچ رہے تھے۔ اس کے ذہن میں پیسوں کا خیال تھا، بے عزتی کا خیال تھا، اور اس احساس کا خیال کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ آج فیصلہ ہو کر رہے گا، اس نے خود سے کہا۔ فیودور پاولوچ اکیلا نہیں تھا۔ گھر میں خاموشی غیر معمولی تھی۔ دروازہ بند تھا، مگر دل کھلا ہوا، لالچ کے لیے۔ وہ بار بار کھڑکی کی طرف دیکھتا، پھر میز پر رکھے پیسوں کو۔ وہ آئے گا، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، وہ ضرور آئے گا۔ سمردیاکوف پاس ہی تھا۔ اس کی حرکتیں معمول کے مطابق تھیں، مگر نظریں بہت تیز۔ وہ جانتا تھا کہ کون کس وقت کہاں ہوگا۔ اس رات کے نقشے اس کے ذہن میں صاف تھے، بغیر شور کے، بغیر جلدی کے۔ دوسری طرف الیوشا نے قدم روک لیے۔ اسے اچانک دل میں شدید گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے راستہ بدلا اور فیودور پاولوچ کے گھر کے سمت دیکھنے لگا۔ کاش میں سب کو روک پاتا، اس نے دل میں کہا، مگر دل ہی دل میں اسے معلوم تھا کہ کچھ طاقتیں روکنے سے نہیں رکتی۔ اسی لمحے دمتری ایک موڑ پر رکا۔ سامنے وہی گھر تھا، کھڑکیوں میں ہلکی روشنی، دروازہ بند اور فضا میں ایک عجیب سی سختی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے مٹھی باندھ لی۔ یا تو آج سب ختم ہوگا یا سب شروع۔ اسی وقت کہیں دور ایک دروازہ چرچرانے کی آواز کے ساتھ کھلا، اور رات نے اپنا سانس اور گہرا کر لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے بعد کہانی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ اندھیرے میں اچانک حرکت ہوئی۔ دمتری نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر دیوار سے خود کو لگا لیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے سانس روک لی، جیسے ذرا سی آواز بھی سب کچھ بگاڑ دے گی۔ گھر کے اندر ہلکی سی آہٹ سنائی دی، پاؤں کے فرش پر گھسٹنے کی آواز۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ دمتری کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا وہ ڈر بھی رہا تھا اور انتظار بھی، مگر جو سامنے آیا وہ باپ نہیں تھا، سمردیاکوف تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ وہ ایسے باہر نکلا جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو۔ اس نے دمتری کو نہیں دیکھا، یا شاید دیکھ کر بھی نظر انداز کیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، مگر اندھیرے میں صاف نظر نہ آیا۔ دمتری کے ذہن میں ایک لمحے کو عجیب سا خیال آیا، اگر وہ اندر ہے تو پھر دروازہ کیوں کھلا؟
घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, न कहकहा न कदमों की चाप। फ्योदोर पाव्लोविच की वो मखसूस हंसी जो हमेशा फिजा में चुभती थी, गायब थी। दिमित्री ने आहिस्ता से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ उसका दिल बैठता जा रहा था। उसने कान लगाकर सुना, खामोशी, ऐसी खामोशी जो चीखती है। अचानक अंदर से एक भारी सी आवाज आई, कुछ गिरा, या शायद कोई गिरा। दिमित्री के हाथ पसीने से भर गए। उसने मुट्ठी में बंद चीज को जोर से पकड़ लिया, वो चीज जिसे वो खुद भी पूरी तरह पहचान नहीं पा रहा था। ये मैंने नहीं किया, उसने दिल में कहा, जैसे पहले ही अपना दिफा कर रहा हो। उसी वक्त गली के दूसरे सिरे पर अल्योशा रुक गया। उसके दिल में एक शदीद झटका सा लगा। बगैर किसी आवाज के उसने तेजी से कदम बढ़ाए। उसका दिल जोर से कह रहा था, कुछ गलत हो गया है। और कहीं दूर शहर से निकलती सड़क पर इवान की गाड़ी झटके से रुकी। उसने अचानक पीछे देखा, कुछ नहीं था, मगर उसके चेहरे का रंग बदल चुका था। रात ने फैसला कर लिया था। अब सवाल ये नहीं था कि क्या होने वाला है, बल्कि ये था कि इल्जाम किस पर आएगा। खामोशी टूट गई। दरवाजा पूरी तरह खुला और दिमित्री अंदर दाखिल हुआ। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर फर्श पर बिखरी हुई चीजें साफ बता रही थीं कि यहां कुछ हुआ है, कुछ बहुत गलत। मेज उल्टी पड़ी थी, कुर्सी एक तरफ गिरी हुई थी, और फिर दिमित्री की नजर जमीन पर पड़ी। फ्योदोर पाव्लोविच हरकत नहीं कर रहा था। एक लम्हे के लिए दिमित्री को सांस लेना भूल गया। उसने आगे बढ़कर देखा, चेहरा पहचाना, मगर वो कहकहा नहीं था, वो तंज नहीं था, वो आवाज नहीं थी जो बरसों उसके कानों में चुभती रही थी। वो खामोश था, हमेशा के लिए। दिमित्री के हाथ लरजने लगे। उसने पीछे हटने की कोशिश की, मगर पांव साथ नहीं दे रहे थे। उसके जहन में एक ही जुमला गूंज रहा था, ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। इसी लम्हे बाहर शोर हुआ, कदमों की आवाजें, दरवाजों के खुलने की आवाजें, और फिर लोगों की आवाजें, ऊंची, बेतरतीब, खौफ से भरी हुई। किसी ने चीख कर कहा, कत्ल हो गया है। दिमित्री चौंक गया। उसने मुड़कर देखा, दरवाजे पर लोग जमा हो रहे थे। नजरें उस पर जम गईं। किसी की आंखों में हैरत थी, किसी में खौफ और किसी में यकीन। ये वही है, किसी ने कहा। यही तो था जो धमकियां दे रहा था। दिमित्री के कान सुन्न हो गए। उसने कुछ कहना चाहा, मगर आवाज बाहर ना आ सकी। उसके कपड़ों पर दाग थे, पसीने के, मट्टी के, और शायद कुछ और भी। वो खुद नहीं जानता था। उसी वक्त सिपाही अंदर दाखिल हुए। आप हमारे साथ चलेंगे, एक ने सख्त लहजे में कहा। दिमित्री में मुजाहमत नहीं की। उसने बस एक बार पीछे देखा, अपने बाप की लाश की तरफ। उस नजर में नफरत नहीं थी, बस एक खालीपन था। बाहर अल्योशा पहुंच चुका था। उसने मंजर देखा तो रुक गया। उसका दिल बैठ गया। नहीं, उसने आहिस्ता कहा, ये ऐसे नहीं हो सकता। और कहीं दूर शहर की सड़क पर इवान ने अचानक सर पकड़ लिया। उसे अभी तक खबर नहीं मिली थी, मगर उसका दिल पहले ही जान चुका था। रात खत्म नहीं हुई थी, मगर अंजाम शुरू हो चुका था। रात के सन्नाटे में अब आवाजें गूंज रही थीं। सिपाही दिमित्री को बाहर ले आए। गली में मशलों की रोशनी थी। लोग जमा हो चुके थे और हर चेहरे पर एक ही सवाल लिखा था, क्या वाकई उसने अपने बाप को मार दिया? दिमित्री के हाथ बंधे नहीं थे, मगर वो आजाद भी नहीं था। उसका सर झुका हुआ था, मगर आंखें खाली, जैसे उसकी रूह अभी तक उसी कमरे में खड़ी हो जहां सब कुछ बिखर गया था। थाने में चिराग जलाया गया। कमरा सादा था, मगर फिजा भारी। एक अफसर ने कागज सामने रखा और सख्त आवाज में कहा, हमें सब कुछ बताओ, तुम कहां थे और क्यों आए थे? दिमित्री ने आहिस्ता से सर उठाया। मैं पैसे लेने आया था, उसने साफ कहा। यह सच था, मगर अधूरा। किससे? अपने बाप से। कमरे में खामोशी छा गई। कलम रुका, नजरें तेज हो गईं। और जब तुम पहुंचे तब क्या हुआ? दिमित्री के अल्फाज लड़खड़ा गए। मैंने लाश देखी, बस लाश। उसकी आवाज में खौफ था, मगर साथ ही जिद भी, जैसे वो खुद को याद दिला रहा हो कि वो कातिल नहीं है। उधर अल्योशा को अलग कमरे में बिठाया गया। उसके चेहरे पर सदमा था, मगर आवाज में सच्चाई। मेरा भाई ऐसा नहीं है, उसने कहा। वो गुस्से में कुछ भी कह सकता है, मगर कत्ल नहीं। लेकिन शहर के लोग कुछ और कह रहे थे।
वही सबसे ज्यादा लड़ता था, पैसे के लिए सब कुछ कर सकता था। बातें फैलने लगी, सच और इल्जाम एक दूसरे में घुलने लगे। इसी दौरान इवान को खबर मिल गई। वो रुक गया, जैसे जमीन उसके पांव के नीचे से हट गई हो। गिरफ्तार? उसने आहिस्ता कहा। उसके जहन में एक ही ख्याल आया, मैं यहां नहीं था। और इसी ख्याल ने उसे अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। दूर कहीं स्मर्द याकूब खामोश लेटा था। उसके चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में एक अजीब सा सुकून। उसने आहिस्ता से आंखें बंद की। खेल शुरू हो चुका था। सुबह करीब आ रही थी, मगर डिमित्री के लिए ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक लंबी आजमाइश की शुरुआत थी। सुबह की रोशनी ने थाने की खिड़कियों से अंदर झांका, मगर दिमित्री के लिए दिन और रात में कोई फर्क न रहा। उसके सामने सवाल थे, बार बार, एक ही शक्ल में, एक ही लहजे में। तुमने क्या देखा? तुम क्यों आए थे? क्या तुम अकेले थे? हर जवाब के साथ कागज पर लकीरें बढ़ती गईं और शक भी। दिमित्री ने सच कहा, जितना उसे खुद याद था, मगर सच बिखरा हुआ था। वो जानता था कि उसकी बातें मुकम्मल नहीं लगती। उसके गुस्से की शोहरत, उसकी धमकियां और उस रात उसकी मौजूदगी, सब उसके खिलाफ जा रहे थे। मैं कातिल नहीं हूं, उसने फिर कहा, मगर इस बार आवाज में थकन थी। इसी दिन शहर में कहानियां बनने लगी। कोई कहता उसने पहले भी हाथ उठाया था, कोई कहता पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। सच आहिस्ता आहिस्ता शोर में दबने लगा। अलियोशा ने लोगों से बात करने की कोशिश की, मगर उसे एहसास हो गया कि गुस्सा दलील नहीं सुनता। उसने दिमित्री को देखने की इजाजत मांगी। जब वो मिला तो दिमित्री ने बस एक बात कही, अगर मैं टूट गया तो मान लेना कि मैं बेगुनाह था। अलियोशा की आंखें भर आईं, मगर वो खामोश रहा। वो जानता था कि अब उसकी खामोशी भी एक गवाही बन रही है। इवान शहर वापस आ चुका था। उसने फाइलें देखी, गवाहों की बातें सुनी, और हर सत्र के साथ उसका दिल भारी होता गया। मैं वहां नहीं था, वो खुद को बार बार याद दिलाता, मगर एक और आवाज भी थी, अगर तुम होते तो शायद कुछ बदल जाता। यही सोच उसे खा रही थी। और स्मर्द याकूब, वो अब भी बिस्तर पर था। कमजोरी का बहाना, खामोशी का फायदा। उसने चंद लफ्जों में बस इतना कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। मगर उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। ऐसा लगता था जैसे वो सब देख चुका हो। दिन गुजरते गए, सबूत जमते गए, और दिमित्री के गिर्द दायरा तंग होता गया। ये अब सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक मुकदमा बन चुका था, और इस मुकदमे में हर सच अपने खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता था। अगले दिन अदालत की इमारत में हलचल थी। कागजात, गवाह, सरगोशियां सब एक साथ चल रहे थे। दिमित्री को अंदर लाया गया तो उसकी नजरें सीधी थीं, मगर चेहरा थका हुआ, जैसे वो पहले ही कई लड़ाइयां लड़ चुका हो। पहला गवाह बोला, मैंने उसे इसी रात गुस्से में देखा था। दूसरा बोला, वो पैसों के बारे में चीख रहा था। हर जुमला दिमित्री के खिलाफ जा रहा था। उसके वकील ने सवाल उठाए, मगर शोर में दलील दबती रही। सच के टुकड़े थे, मगर पूरी तस्वीर किसी और के हाथ में लगती थी। फिर स्मर्द याकूब को लाया गया। वो कमजोर दिखाई दे रहा था, कदम आहिस्ता, आवाज मध्यम। मैं बीमार था, उसने कहा। मैंने कुछ खास नहीं देखा। मगर जब उससे सवाल बदले गए, वक्त, दरवाजा, आवाज, तो उसकी बातों में हल्की सी दरार पड़ी। एक लम्हे को उसकी नजरें भटकीं, बस एक लम्हा, मगर ईवान ने देख लिया। ईवान की पेशानी पर पसीना आ गया। उसे याद आया, वो बातें, वो इशारे, वो जुमले जो स्मर्द याकूब ने पहले कहे थे, अगर सब कुछ मुमकिन हो। ये जुमला अब उसके कानों में गूंज रहा था। वक्फे में ईवान ने स्मर्द याकूब से अकेले में बात की। सच बताओ, उसने आहिस्ता कहा। स्मर्द याकूब मुस्कुराया, हल्की सी, खतरनाक सी। सच? सच तो वही है जो मान लिया जाए। ईवान पीछे हट गया। उसके दिल में पहली बार वाज़े खौफ उतरा। ये मैंने होने दिया। ये ख्याल उसके अंदर जहर बनकर फैलने लगा। इधर दिमित्री ने पिंजरे जैसे कटहरे से सब देखा। उसे लगा जैसे जमीन उसके पांव के नीचे से खिसक रही हो। मैं बेगुनाह हूं, उसने जोर से कहा, मगर आवाज कमरे में खो गई। अलोशा ने नजरें झुका लीं। वो जानता था कि अब बात दलील से आगे जा चुकी थी।
ये जंग अब दिलों में लड़ी जा रही थी, और दिल हमेशा मुंसिफ नहीं होते। अदालत की घंटी बजी, कार्रवाई आगे बढ़ी, और कहीं ना कहीं सच दरारों के बीच सांस लेने की कोशिश कर रहा था। अगली समात में अदालत भरी हुई थी। लोग अपनी जगहों पर जमे हुए थे, जैसे कोई तमाशा देखने आए हों। मगर कठेरे में खड़ा दिमित्री तमाशा नहीं था, वो एक इंसान था जिसकी तकदीर अब चंद जुमलों पर टिकी हुई थी। वकील ने आवाज बुलंद की, हम जज्बात नहीं, सबूत देखेंगे। मगर इस्तवासा ने फौरन वार किया। मुल्जिम की धमकियां, उसकी मौजूदगी, उसका मकसद सब वाज़े है। कमरे में सरगोशियां बढ़ गईं। दिमित्री ने आंखें बंद कर लीं। वो जानता था कि सच चीखने से साबित नहीं होता, सच माना जाता है। फिर ईवान को बुलाया गया। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ कोई अंदर से टूट रहा हो। आप उस रात कहाँ थे? सवाल आया। शहर से बाहर, ईवान ने जवाब दिया। ये सच था, मगर मुकम्मल नहीं। अचानक उसके जहन में स्मर्द-ए-खौफ के अल्फाज गूंजने लगे। सच वही है जो मान लिया जाए। ईवान का सांस अटक गया। उसने बोलना चाहा, मगर जुबान साथ न दे सकी। एक लम्हे को ऐसा लगा जैसे वो सबके सामने सब कुछ कह देगा, मगर फिर खामोशी ने उसे जकड़ लिया। वक्फे में ईवान बाहर आया। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने उसे इशारे दिए थे, मैंने सब कुछ मुमकिन होने दिया था। ये जुमले उसके दिमाग में बार बार टकरा रहे थे। इसी दौरान स्मर्द-ए-खौफ को दोबारा बुलाया गया। इस बार उसकी आवाज़ और धीमी थी। मैं कमज़ोर हूँ, उसने कहा। मुझे ठीक से याद नहीं, मगर उसकी आंखों में अजीब सी तेज़ी थी, जैसे वो जानता हो कि खेल किसके हाथ में है। ईवान ने उसकी तरफ देखा, और इस नज़र में पहली बार नफरत नहीं, डर था। अलियोशा ने ये सब देखा। उसका दिल कह रहा था कि अब देर हो रही है। वो ईवान के पास गया। अगर तुम जानते हो तो खामोशी भी गुनाह बन जाती है। ईवान ने कोई जवाब न दिया। वो जानता था फैसला अब अदालत से ज्यादा उसके अपने अंदर होना था। अदालत में वापस घंटी बजी। बहस आगे बढ़ी। लफ्ज सख्त होते गए और वक्त बेरहम। ये मुकदमा अब सिर्फ दिमित्री का नहीं रहा था, ये ज़मीर का मुकदमा बन चुका था, और ज़मीर अक्सर आखिरी लम्हे तक खामोश रहता है। उसी रात ईवान सो न सका। कमरे में खामोशी थी, मगर उसके अंदर शोर। स्मर्द-ए-खौफ के अल्फाज बार बार लौट आते, जैसे किसी ने जहन पर कील ठोक दी हो। अगर सब कुछ मुमकिन हो। ईवान ने अचानक उठकर चिराग जलाया। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने उसे इशारा क्यों दिया? ये सवाल अब सवाल नहीं रहे थे, ये इल्जाम बन चुके थे। अगली सुबह ईवान सीधा स्मर्द-ए-खौफ के पास पहुंचा। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। स्मर्द-ए-खौफ बिस्तर पर लेटा था, कमजोर, खामोश। ईवान ने सख्त आवाज में कहा, अब झूठ काफी हो गया, सच बताओ, उस रात क्या हुआ था? स्मर्द-ए-खौफ ने आहिस्ता से मुस्कुराहट दबाई। आप क्यों परेशान हैं? कातिल तो मिल चुका है। ईवान ने आगे झुककर कहा, नहीं, कातिल तुम हो। एक लम्हे को कमरे में हवा रुक गई। स्मर्द-ए-खौफ की आंखें तेज हो गईं। फिर वो आहिस्ता बोला, और अगर मैं हूं तो क्या फर्क पड़ता है? आपने ही तो कहा था, अगर सब कुछ मुमकिन हो। ईवान पीछे हट गया। ये जुमला अब तलवार बन चुका था। तुमने उसे मारा? ईवान की आवाज टूट रही थी। स्मर्द-ए-खौफ ने नजरें हटा लीं। हां, उसने कहा, मैंने किया। ईवान का दिमाग सुन्न हो गया। फिर दिमित्री? एक अच्छा पर्दा था, स्मर्द-ए-खौफ ने सर्द लहजे में कहा। गुस्सा, धमकियां, पैसे, सब कुछ मौजूद था, बस थोड़ा सा मौका चाहिए था। ईवान के अंदर कुछ टूट गया। तुमने उसे बर्बाद कर दिया। नहीं, स्मर्द-ए-खौफ ने कहा, हमने किया। ईवान लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। हवा ठंडी थी, मगर उसके अंदर आग लगी थी। वो जानता था कि अब खामोश रहना नामुमकिन है। इधर अदालत में फैसला करीब आ रहा था। सबूत जुड़ रहे थे, अल्फाज सख्त हो रहे थे। अलियोशा ने ईवान को देखा। उसकी आंखों में वो कैफियत थी जो सच जान लेने के बाद आती है। तुम जानते हो, अलियोशा ने आहिस्ता कहा। ईवान ने सर हिलाया। और अब मुझे बोलना होगा। वक्त कम था, फैसला करीब था, और सच आखिरकार दरवाजा खटखटा रहा था। अदालत का दिन फैसला कुन था। कमरा पहले से ज्यादा भरा हुआ था। लोग अपनी सांसें रोके बैठे थे।
दमित्री कठहरे में खड़ा था, चेहरा जर्द मगर आंखों में एक जिद, जैसे वो टूटा जरूर हो मगर झुका नहीं। कार्रवाई शुरू हुई। इस्तिगासा ने आखिरी बार अपने दलाइल दोहराए, गुस्सा, धमकियां, पैसा और वो रात। फिर अचानक दरवाज़ा खुला, सबकी नज़रें पलट गईं। ईवान अंदर दाखिल हुआ। उसके कदम गैर मतवाजिन थे, चेहरा थका हुआ, आंखों में बुखार की सी चमक। एक लम्हे को किसी ने समझा वो गिर पड़ेगा, मगर वो सीधा आगे बढ़ा। मैं बयान देना चाहता हूं, उसने बुलंद आवाज में कहा। कमरे में शोर उठा। जज ने घड़ी की तरफ देखा। आपकी हालत ठीक नहीं लग रही, उसने कहा। मगर मेरा ज़मीर अब खामोश नहीं रह सकता, ईवान ने जवाब दिया। उसने सांस ली, फिर बोलना शुरू किया। स्मर्दियाकोव, वो रात, वो बातें, वो इशारे। अल्फाज टूट रहे थे मगर मानी साफ थे। दमित्री ने चौंक कर उसे देखा। भाई, तुम क्या कह रहे हो? ईवान ने उसकी तरफ देखा। उस नज़र में शर्मिंदगी थी, दर्द था और सच। मैंने उसे नहीं रोका, मैंने सब कुछ मुमकिन होने दिया। कमरे में हलचल मच गई। किसी ने कहा यह पागल हो गया है, किसी ने कहा यह नया ड्रामा है। ईवान की आवाज़ लड़खड़ा गई। उसने सर पकड़ लिया, लफ्ज़ बिखरने लगे, आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगी। स्मर्दियाकोव, उसने किया और मैंने। अचानक वो रुक गया, आंखें खाली, जिस्म लरसता हुआ। वो ज़मीन पर बैठ गया। अदालत में सन्नाटा छा गया। अलियोशा दौड़कर उसके पास पहुंचा। बस, अब बस करो, उसने आहिस्ता कहा। जज ने हथौड़ा मारा। कार्रवाई मुलतवी की जाती है। दमित्री खड़ा रह गया। उसके सामने उम्मीद की एक लकीर उभरी, मगर बहुत कमज़ोर, क्योंकि सच बोल दिया गया था। मगर क्या उसे माना भी जाएगा? फैसला अभी बाकी था और वक्त अब भी बेरहम था। अदालत में सन्नाटा अभी टूटा नहीं था। ईवान को फर्श से उठाकर बाहर ले जाया गया। उसकी आंखें खुली थीं, मगर वो कुछ देख नहीं रहा था। जैसे सच बोलने के बाद उसके अंदर सब कुछ जलकर राख हो चुका हो। दमित्री कटहरे में अकेला खड़ा रह गया। अभी कुछ लम्हे पहले वो खुद को मुकम्मल तौर पर हारा हुआ समझ रहा था और अब एक कमज़ोर सी उम्मीद उसके अंदर जाग उठी थी। मगर वो जानता था कि अदालत उम्मीद पर नहीं, यकीन पर फैसला सुनाती है। लोग आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने लगे। किसी ने कहा यह सब ड्रामा है, किसी ने कहा पागलपन में किया गया बयान क्या माना जाएगा, और कुछ ने खामोशी इख्तियार की, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानते थे कि सच किस तरफ है। अलोशा ईवान के साथ था। वो उसे गाड़ी तक ले आया, उसका सर अपने हाथ से सहारा दिया। तुमने वही किया जो ज़रूरी था, अलोशा ने आहिस्ता कहा, मगर ईवान ने कोई जवाब न दिया। उसके चेहरे पर सुकून नहीं था, बस थकन थी, गहरी और दर्दनाक। उसी रात खबर फैल गई, अदालत में नया मोड़ आ चुका है। मगर ये मोड़ दमित्री को फौरन आज़ाद नहीं कर रहा था। अगले दिन इस्तिगासा ने नया रुख इख्तियार किया। ईवान की जहनी हालत ख़राब है, उसका बयान काबिले एतबार नहीं। ये सब मुल्जिम को बचाने की कोशिश है। स्मर्दियाकोव को दोबारा बुलाया गया। इस बार वो और भी कमज़ोर दिखाई दिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर बातें नाप तोल कर की गई थीं। मैंने कुछ नहीं किया, उसने कहा। ये सब ईवान साहब के वहम है। अलोशा ने उसकी आंखों में देखा। वही पुरानी सर्दी, वही हिसाब। उसे यकीन हो गया कि सच अदालत में नहीं, इंसानों के अंदर दफन है। दमित्री को वापस कैद खाने ले जाया गया। रास्ते में उसने अलोशा की तरफ देखा। अगर मुझे सज़ा हो गई, उसने बात अधूरी छोड़ दी। अलोशा ने फौरन कहा, सज़ा सच की नहीं होती भाई, बस कभी कभी सच देर से पहचाना जाता है। दमित्री ने हल्की सी मुस्कुराहट की, ऐसी मुस्कुराहट जो मजबूत होने की कोशिश करती है। उधर ईवान बिस्तर पर पड़ा था। बुखार तेज था, आंखें बंद थीं और होंठ हिल रहे थे। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, मैंने होने दिया, मैंने होने दिया। डॉक्टर ने सर हिलाया। उसका दिमाग बोझ नहीं संभाल पाया। मगर असल सवाल ये था, क्या अदालत सच का बोझ उठा पाएगी? कस्बा दो हिस्सों में बंट चुका था। कुछ लोग दमित्री को कातिल मान चुके थे और कुछ अब खामोश हो गए थे, क्योंकि खामोशी भी कभी कभी शक की अलामत होती है। और कहीं एक कमरे में स्मर्दियाकोव अकेला बैठा था। मेज पर कागज रखा था और कलम देर तक रुका रहा।
وہ جانتا تھا کھیل جیتا جا سکتا ہے مگر ضمیر سے نہیں بھاگا جا سکتا۔ کہانی اپنے آخری موڑ کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں فیصلہ صرف عدالت نہیں کرے گی، وہاں انسان خود بھی کٹہرے میں کھڑا ہوگا، اور یہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اگلی صبح عدالت پھر بھری ہوئی تھی، مگر آج فضا میں وہی شور نہیں تھا۔ آج لوگ زیادہ سنجیدہ تھے، جیسے سب کو اندازہ ہو گیا ہو کہ یہ محض تماشا نہیں رہا۔ دمیتری کو اندر لایا گیا۔ اس کے چہرے پر نیند کی کمی صاف نظر آ رہی تھی، مگر آنکھوں میں اب بھی ایک عجیب سی مضبوطی تھی، جیسے وہ اندر ہی اندر خود سے کہہ رہا ہو، میں ٹوٹ سکتا ہوں مگر جھوٹ نہیں بنوں گا۔ جج نے کارروائی شروع کی۔ استغاثہ نے پھر زور دیا کہ ایوان کا بیان قابل اعتماد نہیں۔ ذہنی دباؤ، بخار، وہم، یہ سب ایک خطرناک گواہی کو جنم دیتے ہیں۔ وکیل نے جواب دیا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا سچ ہمیشہ مکمل ہوش میں ہی بولا جاتا ہے، یا کبھی کبھی انسان ٹوٹ کر ہی سچ بول پاتا ہے؟ کمرے میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ پھر ایک غیر متوقع بات ہوئی۔ سمردیاکوو نے بولنے کی اجازت مانگی۔ سب چونک گئے۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑا ہوا، چہرہ پیلا، ہاتھ کانپتے ہوئے۔ میں مزید نہیں بول سکتا، اس نے کہا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ الیوشا نے فوراً محسوس کیا، یہ کمزوری نہیں تھی، یہ فرار تھا۔ جج نے کچھ لمحے غور کیا، پھر کہا، آپ کو آرام دیا جاتا ہے۔ سمردیاکوو بیٹھ گیا، مگر اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے ایوان کی خالی کرسی کی طرف اٹھیں اور پھر فوراً جھک گئیں۔ دمیتری نے یہ سب دیکھا۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک واضح خیال ابھا، قاتل صرف ہاتھ سے نہیں مارتا، کبھی کبھی خاموشی بھی وار کرتی ہے۔ عدالت برخاست ہوئی۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی، ہلکی مگر مسلسل۔ الیوشا دمیتری کے ساتھ چل رہا تھا۔ تم مضبوط رہو، اس نے کہا۔ سچ اپنا راستہ خود بناتا ہے، چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ دمیتری نے سر ہلایا۔ اگر میں ہار گیا تو کم از کم جھوٹ کے ساتھ نہیں ہاروں گا۔ اسی دن ایک اور خبر پھیلی۔ سمردیاکوو کی حالت بگڑ گئی تھی۔ وہ کمرے میں اکیلا تھا، دروازہ بند، پردے گرے ہوئے۔ میز پر وہی کاغذ اب بھی رکھا تھا، مگر اس بار قلم چل چکا تھا۔ الفاظ سادہ تھے، مختصر تھے، مگر وزنی تھے۔ وہ خط اعتراف تھا۔ جب ڈاکٹر اندر آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ قصبے میں جیسے ایک سانس رک گئی۔ یہ خبر عدالت تک پہنچی اور پھر دمیتری تک۔ الیوشا نے خط ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے لکھا ہے کہ قتل اس نے کیا تھا۔ دمیتری بیٹھ گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ہنسا، پھر خاموش ہو گیا۔ یہ خوشی نہیں تھی، یہ تھکن تھی، اور اب سوال بدل چکا تھا۔ کیا سچ آخرکار سامنے آ گیا ہے، یا بہت دیر ہو چکی ہے؟ عدالت کو دوبارہ بلایا گیا، اور کہانی اپنے آخری فیصلے کے قریب پہنچ گئی۔ عدالت ایک بار پھر کھلی، مگر اس بار فضا مختلف تھی۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ قتل ہوا یا نہیں، اب سوال یہ تھا کہ سچ کو مانا جائے گا یا نہیں۔ سمردیاکوو کا خط عدالت کے سامنے رکھا گیا۔ کاغذ سادہ تھا، تحریر صاف اور الفاظ سیدھے، بغیر کسی جذباتی رنگ کے۔ جج نے خط پڑھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہر لفظ کے ساتھ دمیتری کے کندھوں سے جیسے بوجھ اترتا جا رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر خوشی نہیں آئی، صرف ایک گہری سانس، جیسے کوئی لمبے وقت کے بعد سانس لے رہا ہو۔ استغاثہ نے فوراً اعتراض اٹھایا۔ یہ خط دباؤ میں لکھا جا سکتا ہے، یہ ایک چال ہو سکتی ہے، مگر اب ان کی آواز میں پہلے جیسا یقین نہیں تھا۔ وکیل نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، یہ اعتراف ہے، اور اعتراف چاہے دیر سے آئے، سچ ہی ہوتا ہے۔ الیوشا خاموش بیٹھا سب سن رہا تھا۔ اس کے دل میں شکر تھا، مگر آنکھوں میں اداسی، کیونکہ سچ نے بہت دیر کر دی تھی۔ جج نے فیصلہ محفوظ کرنے کا اعلان کیا۔ کمرے میں سرگوشیاں پھر لوٹ آئیں، مگر اب ان سرگوشیوں میں الزام کم تھا اور حیرت زیادہ۔ دمیتری کو واپس لے جایا گیا۔ راستے میں اس نے الیوشا سے کہا، اگر میں آزاد بھی ہو گیا تو جو وقت گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ الیوشا نے جواب دیا، مگر تم خود کو کھوئے بغیر واپس آ رہے ہو، یہ کم نہیں ہوتا بھائی۔ چند دن بعد فیصلہ سنایا گیا۔
عدالت نے مان لیا کہ دمیتری قاتل نہیں تھا۔ یہ الفاظ کمرے میں گونجے مگر تالیاں نہیں بجیں۔ یہ فتح کی کہانی نہیں تھی، یہ ایک دیر سے آنے والی سچائی تھی۔ دمیتری آزاد ہوا مگر وہ عدالت سے نکلتے ہوئے مسکرایا نہیں، وہ خاموشی سے باہر آیا، آسمان کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، اب مجھے خود کے ساتھ جینا سیکھنا ہے۔ ایوان اب بھی کمزور تھا، جسم ٹھیک ہو رہا تھا مگر ذہن ابھی زخمی تھا۔ اس نے دمیتری کو دیکھا تو نظریں جھکا لیں۔ میں نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا تھا، اس نے آہستہ کہا۔ دمیتری نے سر ہلایا۔ ہم سب نے ایک دوسرے کو چھوڑا تھا۔ الیوشا دونوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اسے لگا جیسے یہ خاندان اب بھی ٹوٹا ہوا ہے، مگر شاید پہلی بار سچ کے ساتھ۔ قصبہ آہستہ آہستہ معمول پر آ رہا تھا، مگر کارامازوف خاندان کے لیے کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ یہ انجام نہیں تھا، یہ صرف ایک ٹھہراؤ تھا، کیونکہ کچھ کہانیاں عدالت میں ختم نہیں ہوتی، وہ انسان کے اندر چلتی رہتی ہیں۔ وقت آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ عدالت کا شور پیچھے رہ گیا، مگر اس کے اثرات دلوں میں باقی تھے۔ دمیتری نے قصبہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فرار نہیں تھا، یہ خود کو نئے سرے سے سمجھنے کی کوشش تھی۔ اس نے جاتے ہوئے الیوشا سے کہا، میں نے غصے میں جینا سیکھا تھا، اب شاید سکون سیکھنا پڑے گا۔ الیوشا نے بس سر ہلایا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ راستے اکیلے طے کیے جاتے ہیں۔ جہاں بھی رہو، اس نے کہا، سچ کو ساتھ رکھنا، باقی سب خود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایوان شہر میں ہی رہا۔ وہ اکثر خاموش رہنے لگا تھا۔ کتابیں اس کے سامنے ہوتیں مگر نظریں کہیں اور بھٹکتی رہتیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا جرم ہاتھوں کا نہیں تھا بلکہ سوچوں کا تھا، اور ایسے زخم وقت سے نہیں قبولیت سے بھرتے ہیں۔ کبھی کبھی تینوں بھائی ایک ہی بات سوچتے تھے، اگر سب کچھ پہلے سمجھ آ جاتا تو کیا انجام مختلف ہوتا؟ مگر زندگی اگر پر نہیں چلتی۔ قصبہ اپنی رفتار میں لوٹ آیا، نئی باتیں، نئی کہانیاں اور پرانی سرہوشیاں۔ سمر دیاکوف کا نام اب کم لیا جاتا تھا، جیسے لوگ اسے یاد کر کے بھی بھول جانا چاہتے ہوں۔ کارامازوف کا گھر ویسا ہی کھڑا تھا مگر اندر خالی تھا۔ وہ ہنسی جو کبھی کانوں میں چبھتی تھی اب دیواروں میں دفن ہو چکی تھی۔ الیوشا اکثر اس گھر کے سامنے سے گزرتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ کچھ جگہیں انسان کو نہیں، اس کی غلطیوں کو سنبھالتی ہیں۔ یہ کہانی کسی ایک سزا یا آزادی پر ختم نہیں ہوئی، یہ اس سوال پر ختم ہوئی جس کا جواب ہر شخص کو خود دینا ہوتا ہے کہ سچ جان لینے کے بعد ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اور شاید یہی سوال کارامازوف خاندان کی اصل وراثت تھا۔ وقت نے سب کچھ مٹا نہیں دیا مگر اس نے سب کچھ بدل ضرور دیا۔ دمیتری جہاں بھی گیا وہ اپنے ساتھ ایک سبق لے کر گیا کہ غصہ طاقت نہیں ہوتا اور سچ ہمیشہ شور نہیں مچاتا۔ کبھی کبھی وہ خاموش رہ کر انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ ایوان نے آہستہ آہستہ خود کو سنبھالنا شروع کیا۔ وہ جانتا تھا کہ معافی مانگنا آسان نہیں، خاص طور پر خود سے، مگر ہر دن کے ساتھ وہ یہ سیکھ رہا تھا کہ ذمہ داری مان لینا بھی ایک طرح کی ہمت ہے۔ الیوشا وہیں رہا، لوگوں کے بیچ، ان کے سوالوں کے ساتھ۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا کامل نہیں ہو سکتی مگر انسان بہتر ضرور ہو سکتا ہے، اور شاید یہی اس کی عبادت تھی۔ کارامازوف کا نام اب بھی قصبے میں لیا جاتا تھا مگر پہلے جیسی ہنسی کے ساتھ نہیں۔ اب اس نام کے ساتھ ایک خاموشی جڑی تھی، ایسی خاموشی جو سوچنے پر مجبور کر دے۔ یہ کہانی کسی ہیرو پر ختم نہیں ہوئی، نہ کسی مکمل مجرم پر۔ یہ ان لوگوں کی کہانی تھی جو سچ کے قریب آ گئے مگر اس کی قیمت بھی ادا کی۔ اور شاید یہی حقیقت ہے، کیونکہ زندگی میں انصاف ہمیشہ وقت پر نہیں آتا مگر سچ کسی نہ کسی شکل میں دروازہ ضرور کھٹکھٹاتا ہے۔
اور جب وہ دروازہ کھلتا ہے تو سوال صرف یہ نہیں ہوتا کہ قصور کس کا تھا، سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سچ کے بعد کون بننا چاہتے ہیں۔ یہی سوال کہانی کو ختم نہیں کرتا، یہ اسے ہم تک لے آتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ کہانی آج بھی زندہ ہے، کیونکہ یہ صرف دمیتری کی نہیں تھی، نہ ایوان کی، نہ الیوشا کی۔ یہ ہر اس انسان کی کہانی تھی جو غصے اور سچ کے بیچ کھڑا ہو، جو جانتا ہو کہ وہ غلط ہے مگر ماننے سے ڈرتا ہو۔ کارامازوف خاندان صرف ایک نام نہیں تھا، وہ ایک آئینہ تھا جس میں انسان اپنی کمزوریاں بھی دیکھتا ہے اور اپنی ذمہ داری بھی۔ یہاں کوئی مکمل معصوم نہیں تھا اور کوئی مکمل شیطان بھی نہیں، صرف انسان تھے، غلطیوں کے ساتھ اور سچ کے خوف کے ساتھ۔ وقت آگے بڑھ گیا، قصبہ بدل گیا، نام مٹ گئے، مگر سوال باقی رہا۔ کیا ہم سچ جان کر خاموش رہتے ہیں یا اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوتے ہیں؟ کیونکہ اصل امتحان عدالت میں نہیں ہوتا، وہ دل کے اندر ہوتا ہے، اور شاید یہی امتحان ہر نسل کو دینا پڑتا ہے۔ یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے، مگر اس کا سوال یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اور شاید اسی لیے یہ کہانی سنائی جاتی ہے، یاد رکھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے۔